महोदय, आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हुए, जब से लोकसभा में ये बिल प्रस्ताव रखा गया तब से लेकर हमारा विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने ये बिल के खिलाफ माइनॉरिटियों को, मुस्लिमों को जो भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कल से लेकर हमारे आदरणीय गृहमंत्री और हमारे आदरणीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे आज आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के विस्तार रूप से इस बिल के माध्यम से लोगों को बताने के बाद काफी लोग आज, खास तौर से पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो मोदी जी सरकार जो एक बिल लाया गया है उसके माध्यम से ये उनका जो तरक्की होने वाला है, ये इसलिए कुछ है। ये हमारे कांग्रेस हो, बाकी विपक्ष हो, ये सहन नहीं पा रहे। When it's coming to the bill, sir, this Waqf Amendment Bill, it is not only a legislative proposal. This bill is for accountability, inclusivity, rational reform. There is a proverb saying, sunlight is the best disinfectant. Through this amendment, the sunlight shine into the dark crevices of this mismanagement, opacity, misuse, corruption, and all these things. This is going to be curtailed. हिंदी में भी कहावत है, राख को ही चिंगारी बना दिया गया। किस तरह आज वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आज जब भ्रष्टाचार हो या हमारे जो लैंड डिस्प्यूट्स हो, मिसमैनेजमेंट हो, ये सब होने के बाद बड़ी उम्मीद से ये उम्मीद के बिल के ऊपर खास तौर से मुस्लिम महिलाओं ने और गरीब मुस्लिम ने ये मोदी जी सरकार की ओर देख रहे हैं। आज ये चर्चा के अंदर बार बार जो वक्फ की जो बात आती है, शब्द जो उल्लेख किया जाता है, I would like to make it clear as far as my knowledge goes. The word waqf is not mentioned in the Quran. And the waqf is not about the religion Islam. Waqf is about the Muslim society. Waqf is about properties, lands, management, income and expenditure. So then the fundamental question is, waqf a state subject or a religious subject? Should the Waqf board come under government or should be under the religious body? So is the fundamental debate before us is in this parliament now. We have been debating for the last 2 days whether it is a state subject or religious body. But this very same debate has been raging for centuries. In the 12th century, Egypt under a Muslim dynasty, the Mamluk dynasty, the state control of Waqf was objected by the Muslim clerics and jurists. But when the Turkish Muslim Ottoman dynasty took over Egypt, it was decided that Waqf should be under the control of state. आदरणीय हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने भी उल्लेख किया, आज काफी इस्लामिक देशों में भी वक्फ मैनेजमेंट हैज बीन मॉडर्नाइज्ड, centralized and brought under the state control to ensure transparency, accountability, efficiency, and to see that these countries now, we see countries like Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Oman, Lebanon, they exemplified their administration under state controls. But during the Congress regime in 1995, when this Waqf Act was brought under Section 40, now
This is now Waqf is the question about government and its revenue departments. Through this section 40, the then government has brought into the fold of above this. And even this Waqf tribunal's decisions are really above high courts and supreme courts through this 40 section, thereby putting the Waqf above the Constitution of India. संविधान के पुस्तक लेके हम जो प्रचार करते हैं, पूरा देश भर लोगों को जो गुमराह करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सीधा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अबव जो है, ये हम पूछना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ये माइनॉरिटी वोट हासिल करने के लिए 60 साल से हम देख रहे हैं कांग्रेस किस तरह लोगों को एक नफरत की दीवार खड़ा कर हिंदू और मुसलमान के बीच में वोट पाने का जो साजिश चल रहा है, हम देखते हुए आ रहे हैं। आज मोदी जी ने एक ऐसा कदम आज निर्णय लिया गया, इस माध्यम से आज जो चर्चा जो 3 मुद्दे पे, the 3 most contentious issues rather made as contentious by some parties. Sir, section 1, section 40 of the Waqf Act 1995. Second, the issue is non-Muslims in Waqf boards. Third, Waqf by users. Sir, when it comes to section 40, if one respects constitution, अगर संविधान के ऊपर हमको इतना हमदर्द है, then there is no argument. Waqf cannot be above the courts or judiciary. Either Waqf boards or tribunals, naturally they should be under the control of state and they should be answerable to the judiciary also. The proper management of the properties, ये इश्यू जो है ये प्रॉपर्टीज का मुद्दा है, इसका मैनेजमेंट का मुद्दा है, इसका देख रेख का मुद्दा है, और जो भी इसके अंदर जो गफला हो रहा है उसके बारे में ये मुद्दा है। Number 2, second, non-Muslims on Waqf boards. If Waqf boards are a state subject and India is a secular country, then the state has no specific religion, then non-Muslims can also on the board when it's come to the state control. So बार बार हमारे विपक्ष के नेता और खासतौर से हमारे, मैं जिस प्रांत से आता हूँ हैदराबाद तेलंगाना, हमारे मजलिस नेता बार बार यही सवाल उठा। आज सदन में भी कई लोग तिरुपति के बारे में, ये हमारे दक्षिण के मंदिर के बारे में, तमिलनाडु के मंदिर के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि ये नॉन हिंदू इन मंदिरों में रह सकता है, ऐसा प्रश्न उठा। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने खुलासा किया। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ तिरुपति के बारे में, बार बार जो आप जिक्र कर रहे हैं, तिरुपति एक जो है एक धर्म संस्था है। तिरुपति अगेन इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। एंडोमेंट्स इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो एंडोमेंट्स के अंदर एक ही धर्म के लोग उसमें नहीं रहते एंडोमेंट्स के अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ टीटीडी जो है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है ये, और हमारे आज लीगल लुमिनरी जो कहलाते हैं वो भी बता रहे थे कि लैक्स ऑफ एकर्स तिरुपति के पास है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तिरुपति के अंदर टीटीडी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू हित के लिए आज जो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये टीटीडी के माध्यम से जो हमारे श्रद्धालु जो करोड़ों रुपए में देते हैं इसके लिए खर्च करते हैं। ये स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कोर्सेस में सिर्फ हिंदुओं के लिए एडमिशन नहीं है। ये हॉस्पिटल सिर्फ हिंदुओं के लिए इलाज नहीं किया जाता है। और बार बार इसके बारे में जिक्र किया। सत्य साई बाबा टेम्पल के बारे में कल सदन में मैं सुना था। सत्य साई बाबा टेम्पल का भी एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए लगभग आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर हो, महबूब नगर हो, मेदक, ऐसे जिलाओं में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर उनके पीने का पानी का सुविधा दिया ये सत्य साई बाबा ट्रस्ट के माध्यम से। अगेन दिस ट्रस्ट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अगेन स्टेट। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन या वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल एंड जो हमारे धर्म संस्था के बारे में। तीसरा जो मुद्दा है वक्फ बाय यूजर, ये हमारे कल गृहमंत्री जी बताया सदन में, ये हमारे बिना कोई डॉक्यूमेंट का, बिना कोई कागज का
बिकॉज हम इसमें यूज कर रहे हैं तो ये वक्फ होना चाहिए। जब हम ये जो भी हम इस्तेमाल करते हैं बिना डॉक्यूमेंट का, आज ये बिल के माध्यम से आज डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, उसका लीगल सपोर्ट के बारे में, जो एविडेंस के बारे में पूछा गया, तो उसके ऊपर भी आज लोग हमारे चर्चा करें। ये एक उदाहरण, वन एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव सर। तमिलनाडु के में बार बार बोलना जा रहा है, द ट्रेजेडी ऑफ तिरुचेंदुराई विलेज इन तमिलनाडु is a clear example. A farmer by name Rajgopal tried to sell his land, only be told that the Tamil Nadu Waqf Board has claimed ownership of not just his plat, but the entire village, including 1,500 old Sundareshwar temple. There is no single Muslim is residing in that village. There is no even masjid at all. Entire village they have brought into this Waqf, and almost the Waqf had went 20-page letter to the Waqf Board saying that this is the village belongs to Waqf Board. I asked this house, is the Waqf Board above the Constitution? Is the Waqf Board above the संविधान के ऊपर है? अगर एक पूरा गांव को और जो मंदिर जो है उसका भी एंडोमेंट्स में जो लाया गया, इसीलिए मोदी जी सरकार ने जो नया भारत का जो सोच के पर इसीलिए ये बोर्ड के संविधान के माध्यम से बोर्ड लाने के लिए किस तरह प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्ट और टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल रहने के लिए भी एक सेंट्रल पोर्ट दिया गया। और सचार कमेटी का 2006 में जो रिपोर्ट, कांग्रेस के जमाने में भी जो रिपोर्ट दिया गया, कांग्रेस सरकार ने गठित किया ये सचार कमेटी को। द कमेटी का रिपोर्ट था, annual income from 4.9 lakh registered properties of Waqf gets only 163 crores annually. That is on an average 2.7% return per annum. ये है उनका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का ये संपत्ति का, सिर्फ ये गरीब मुसलमान के लिए 163 crores. And not only that, Sachar has made it very clear, with efficient management, marketable use, these properties can generate a return of not less than 12,000 crores per annum. That is in 2006. अगर आज की बात अगर हम सोचेंगे तो कितने हजार करोड़ आज ये वक्फ बोर्ड के लिए प्रावधान हो सकता है। आज की 2025 में 9.94 लाख ये पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा। और हमारे मस्जिद के नेता जो हमारे हैदराबाद के जब सदन में थे, वो भी विधायक थे, मैं भी विधायक था, ये एमएलए के नाते ऐसा प्रश्न करते थे सरकार को, ये तेलंगाना के अंदर 77,538 एकड़ जो है उसमें 57,000 वक्फ का लैंड पूरा इंक्रोच किया गया, ये लैंड ग्रैबर्स इंक्रोच किया गया, ऐसा बताया। उतना ही नहीं, वो डिमांड कर रहे कि मांग किया कि थी सदन के अंदर, यही एमआईएमएलए दे डिमांडेड जुडिशियल इंक्वायरी ऑन वक्फ बोर्ड एक्टिविटीज, एंक्रोचमेंट ऑफ लैंड्स, irregularities in Telangana Waqf properties, corruption, missing records, and illegal allotments by this Waqf board. And not only that, he has demanded for 100 crores a separate Waqf protection cell to be constituted. अरे जब आपको Waqf board के अंदर उतना विश्वास है, then why did you demand for a judicial inquiry? Now आज क्या बात करते पार्लियामेंट के अंदर, आज बाहर सदन के अंदर क्या बात करते आपको पता है। इसलिए आज सचार कमेटी इतना ही नहीं, आज 1.2 लाख करोड़ वर्थ लैंड्स जो है, ये जो आज संपत्ति मिल रही है उसके बारे में भी ज्यादा